Okay, in today's class we start with the chapter 13, the last chapter of the book, and the name of the chapter you are familiar with, probability. So this is the topic and you are familiar with this word from class 8th. In 11th class we have studied about two words. First one is the sample space, and the second one is the random experiment. These two words we will frequently use in today's class. So first of all, just recall the definition of sample space and random experiment. Sample space is the collection of all outcomes. For example, suppose you are going to toss a coin, then we have two outcomes, either head or tail. In the same manner, if we are going to throw a die, then we have outcome is 1, 2, 3, 4, 5, 6, means collection of all possibility, all outcomes is known as sample space, and each member of sample space is known as event or sample point. These are the simple concept related to sample space. What is the random experiment? Random experiment is an experiment. It is one kind of experiment. It is an experiment whose outcomes is not fixed. Outcome is not fixed. What is the meaning that outcome is not fixed? That means in lab, if we are going to start some experiment like in class 11th and 12th, so we know what will be the outcomes. That means outcome is fixed. But when you are going to toss a coin, you have no idea whether tail come or head come. That means outcome is not fixed in this situation. So these type of experiment is called random experiment. So two words, we have to clear our concept related to the word sample space and random experiment. Okay, so now we'll start with the syllabus of 12th class. What is the syllabus of 12th class? The first topic is conditional probability. The first topic is conditional probability. Okay, so the first topic is conditional probability. Okay, so let us start with few examples to clear about the concept of conditional probability and the related terms. What is the meaning of conditional probability? That means some conditions are given to find a certain probability. So let us start with a very simple example of tossing a 3 coin simultaneously. So we have to start with the tossing 3 coin. Okay, sample space in the case of tossing 3 coin is given as H, all places occupied by head. The next case is 2 head, first 2 head, first last 2 head, and the first head and last head. These are the maximum possibility of 2 head. Now the next one is we have 2 tail, that is 2 tail, and this is 2 tail, and last one is
first place occupied by tail, and last one is the all three tail. These are the sample space of tossing 3 coin. Now the question start. If E and F are two events associated with S, just with S, where E is event S, at least two head appear. Event at least two head appear, and F be the event first coin shows tail. So E and F are two events where E is the event at least two head and F be the event at least first coin shows tail. So these are the information about E and F. Okay, again S is the sample space and total members in the sample space is 1 2 3 4 5 6 7 8. That means each event having probability is 1 by 8. Okay, favorable upon total is 8, and for every event having probability 1 by 8. Okay, next one is we have to form the sample space of E. The sample space of E is at least two head. That means all three heads may be considered, and two head one tail, that is TH, and last one is THS. These are the at least two head. Then probability of E is equal to probability of HHH plus probability of HHT plus probability of HTH plus probability of THH. That is the basic concept of fundamental principle of counting. We have to add all cases, and in each cases having probability 1 by 8 plus 1 by 8 plus 1 by 8 plus 1 by 8 4 times, that is 4 by 8. And you can also directly find that is 4 is the member and total is 8, 4 by 8. But this is also a case, that is 1 by 2 is the probability of E. In the same manner, probability of F will be equal to 1 by 2. So first we form the sample space of F. F will be equal to first coin shows tail, that means THH. T, first coin is fixed, that is T, and last two places can be interchange. HT can be TH and can be all three are T. These are the possibility if the first place occupied by tail. Then probability of F in the same manner is 1 by 2. Okay, next one is probability of, next one is we have to find out the intersection of E and F. What is the common between E event and F event? Look at this here, THH, in the event 1 E we have two heads are required.
Here look at this, two heads are only one condition are two heads. That means we have only common event is T, H, H is common. Okay, then probability, okay, so probability of E intersection F is equal to again 1 by 8, as we know that each members have 1 by 8 probability. Okay, now listen carefully. Suppose if sample space is F, if sample space is F, if we consider the sample space is F, if F will be the sample space, F will be the sample space, then probability of E intersection F means that is 1 by 4. Reason is F is the sample space, then total member in F is 4 and E intersection F have single member. Okay, that is 1 by 4. This E intersection F is 1 by 4 considering F as a sample space. That is also can be stated as if probability of event E subjected to condition if F is already occurred, that is 1 by 4, and this is known as case of conditional probability. So now summarize the topic probability and subtopic conditional probability as probability of event E is called conditional probability if F has already occurred, and it is denoted by P, E, I, F or P, E / F. That is the conditional probability of E if F has already occurred, and this is equal to favorable to E intersection F divided by number favorable to F, number of favorable. This is the favorable means total numbers of in E intersection F and total numbers in favorable in F. Okay, so this can also stated as probability of E, conditional probability of E if F has been already occurred is number in E intersection F divided by number in F. This is the important fact you should keep in your mind. Again, suppose I am going to divide E intersection F is equal to number in E intersection F. Okay, अब divide कर देता हूँ मैं. So this is total number in sample space divided in numerator as well as denominator. So we have this one. This is probability and this is probability. So finally we have probability of E intersection F numerator and probability of F, and this is probability E by F actually. So conditional probability, this is the formula and the important concept which we have just discussed. Okay, so this is the important
केस। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, यही आपका कॉन्सेप्ट है। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, ये फार्मूले हैं। डिस्कशन मैंने कर दिया आपको, आई होप थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो की रिकॉर्डिंग, जिससे आपको सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट वन इज द व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। छोटी छोटी 3 प्रॉपर्टीज हैं हमारे सिलेबस में, जल्दी से उनको हम रिकॉल कर देते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जस्ट रिकॉल दीज प्रॉपर्टीज। First property is probability of sample space, conditional probability of sample space if f is already occurred, that is p s by f is equal to p f by f and this is equal to 1. इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स में मे बी, so let us discuss the proof of this also. ओके, सो एज पर द डिफिनीशन यहाँ पे क्या होगा, P ऑफ S इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F। यह भी हमने फार्मूला पढ़ा। S मीन्स सैंपल स्पेस, इंटरसेक्शन विद F, F मीन्स एक छोटा सा सेट जो सैंपल स्पेस में होगा, तो दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दिस इज अगेन इंटरसेक्शन इज PF एंड PF. This is cancel and this is equal to 1. So 1 marks question always asked. The first property is this. Look at the second property. Second property is if A and B are two events in S, then probability of A union B, conditional probability of A union B upon F is equal to P A upon F plus P B upon F minus A intersection B upon F. ओके, सिंपल केस जैसा हमने सेट में पढ़ा था, A यूनियन B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस इंटरसेक्शन। सिंपल केस, बट जस्ट यूनिक इज वन इज द प्रोबेबिलिटी, एवरीवेयर कंडीशनल, कंडीशंस आ गई हैं। Simple case, no need to explain this more. Third one is, and the important one is, probability of E complement, conditional probability of E complements upon F is equal to 1 minus probability of E upon F. E complement means E complement, that means 1 minus E. प्रूफ करना है, ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ से। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ S बाई F। वी हैव स्टडी दिस वन एंड वी नो दैट S कैन बी रिटन एज, जो सैंपल स्पेस होता है वो इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट से मिलके बना होता है। दिस आर द बेसिक प्रॉपर्टीज। कोई भी सैंपल स्पेस होगा, कोई भी सेट होगा, दैट इज द यूनियन ऑफ एनी इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। दैट सिंपल केस है, जैसे आपका 12th क्लास है तो वहाँ पे 2 इवेंट है, फेल एंड पास, दोनों को कंबाइन करोगे 12th क्लास में 2 ही एस्पेक्ट्स होते हैं। कॉइन को टॉस करना है, हेड और टेल, तो हेड का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, टेल होगा, टेल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हेड होगा। सो ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। सो नेक्स्ट वन इज, अब S कैन बी रिप्लेस बाई E यूनियन E डैश अपॉन F। ओके, दैट इज इक्वल टू 1। अब यहां पे आप अप्लाई करेंगे अभी जो सेकंड प्रॉपर्टी पड़ी, P ऑफ E बाई F प्लस P ऑफ E डैश बाई F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट अपॉन F, एंड वी नो दैट कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो थर्ड टर्म इज
this is basically 0. Now P of E by F is equal to 1 minus P of E complement upon F. ओके या फिर आपको प्रूफ जैसा करना है तो कॉम्प्लीमेंट ये वाले टर्म्स को माइनस कर दिया हमने, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर दिया. ओके, दिस इज द प्रूफ ऑफ द थर्ड प्रॉपर्टी. एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज. अब अगली एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करेंगे. सिंपल सी एक्सरसाइज है, यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. प्रोबेबिलिटी का टोटल वेटेज कितना है? 8 मार्क्स का. ये एक्सरसाइज 1 से 2 मार्क्स आपके लिए यूजफुल है. फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ probability, that is 13.1 स्टार्ट करते हैं. एक ही फार्मूला हमने पढ़ा है, उसी फार्मूले पे बेस सारी एक्सरसाइजेज होंगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. इसी फार्मूले पे बेस सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखना. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन. वी हैव टू फाइंड आउट ई बाई एफ एंड एफ बाई ई. ये हमें फाइंड आउट करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ is 0.3 and probability of E intersection F is 0.2. सिंपल. तो आपको फाइंड आउट करना है probability of E if F is already occurred. That is probability of E intersection F divided by probability of F. Simple. So E intersection F is given 0.2, probability of F is given 0.3. then probability is 2 by 3. Simple. And the same manner F if is already occurred, that is probability of E intersection F upon में यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे, probability of E हो जाएगा. So finally this is equal to 0.2 upon 0.6 upon 0.6, that is 2 by 6, that is 1 by 3. Okay, so this is the simple cases of probability. Same questions like 1. All data are given, you have to just find out the probability. In question number 3, A is given, B is given, P by A is given, then find A intersection B. Already just put the value and get the answer. From question number 1 to 5 they are very common, just formula based question. Some entries are given and you have to find out the sum. Question number 4 is last year question in asked in 1 marks. 1 marks और 2 marks में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ से आपको MCQ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे अपने एग्जाम्स में. ओके, सो started from question number 6 से स्टार्ट करते हैं. coin is tossed 3 times. E head on third toss, F head on first 2 toss. E and F के बारे में अलग अलग केसेस गिवन है. then we have to find out, एक्चुअली हमें फाइंड आउट क्या करना है ये हम देख लेते हैं. so E head on the third toss. E का हमने सैंपल स्पेस फॉर्म करना है. थर्ड पे H फिक्स है, मीन्स हेड फिक्स हो गया थर्ड पोजीशन पे, तो दैट मीन्स फर्स्ट पोजीशन TTH हो सकती है, ट्रिपल H हो सकती है. थर्ड पोजीशन पे H होना है, बाकी दोनों कंडीशंस आप TH H हो सकती है एंड HTH हो सकती है. दीज आर द 4. F क्या है? हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉस. 2 पे हेड फिक्स हो गया, H फिक्स हो गया, तो यहाँ पे T हो सकता है और तीनों ही हेड हो सकते हैं. ओके, सिंपल स्पेस बनाना आपको आना चाहिए और आई थिंक सभी को आता होगा. इजली सारे केसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं. अब यहाँ पे हमें
ई बाई एफ फाइंड आउट करना है, मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंपल केस हमने स्टार्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे आप ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिए। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, कॉमन क्या है, तो दिस इज द, ये कॉमन है, ये आप देख रहे हैं दोनों कॉमन है। ओके, दोनों में एच एच टी, नो दिस इज नॉट कॉमन, so only one member is common, that is HHH, and this HH, this is common is HHH, single member is common। अभी हमें फाइंड आउट करना है P of E by F, सिंपल है। P of E by F इज, दो तरीके से हम प्रोबेबिलिटी वाले केस से भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, E इंटरसेक्शन F, मैंने बेसिक डेफिनेशन भी आपको बताई थी, किसी भी तरीके से ले सकते हैं, बहुत सिंपल है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट आपको ये ऐसे बता देता हूँ। एन ई इंटरसेक्शन एफ में कितने मेंबर्स हैं, 1 मेंबर्स, सो यहाँ पे क्या हो गया 1, डिवाइडेड बाई नंबर इन एफ में कितने थे, 2 मेंबर्स थे एफ में, सो आंसर इज 1/2। अगर प्रोबेबिलिटी के केस में निकालते तो प्रोबेबिलिटी इन ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते एंड प्रोबेबिलिटी इन एफ निकाल लेते, वैसे भी सेम ही आंसर आता, तो दिस इज आंसर इज 1/2। आप सेकंड वाला केस भी ऐसे ही कर लीजिएगा, एटलीस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट 2 हेड का केस बना लीजिए, एट मोस्ट 2 हेड्स का केस बना लीजिए, बाकी सिंपल डेफिनेशंस हमें यूज करनी होती है। केसेस कैसे हैं, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस वेयर ई टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन एंड 1 कॉइन शोज हेड। ओके, so we have these 2 conditions, तो इनके सैंपल स्पेस हम स्टार्ट करते हैं। E का सैंपल स्पेस, टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन एंड 1 कॉइन शोज हेड, 7 पार्ट 1 कर लेते हैं। E if टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन पे टेल आना चाहिए। ओके, यहाँ पे जो केसेस हैं 2 कॉइन का केस है, सो यहाँ पे सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, एच टी एंड टी एच, 1 कॉइन पे टेल आना चाहिए, तो फर्स्ट प्लेस पे एक बार सेकंड प्लेस पे, ये कंडीशंस हो गई। एफ इवेंट है जहाँ पे 1 कॉइन सोज हेड, एक कॉइन पे हेड होना चाहिए, सिंपली फर्स्ट वाले केस का ही सेकंड रिवर्स पार्ट है। 1 कॉइन पे हेड आना चाहिए, तो पहले पे एच टी, यहाँ पे टी एच, दोनों आप देख रहे हैं ना, सिंपल सेम टाइप के केसेस हो गए। इंटरसेक्शन क्या है दोनों में, ई इंटरसेक्शन एफ सेम ही है, कंप्लीट, एच टी एंड टी एच। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E if F is already occurred is given by number in E intersection F upon number in F, दोनों सेम ही है, दोनों में 2 नंबर्स हैं, 2/2 that is cancel out and this probability is 1, तो इसका आंसर 1 आ रहा है, क्योंकि कंडीशन सेम है, E और F में कॉमन मेंबर्स हैं। इसको हम और कैसे करते हैं, ये तो मैंने नंबर्स में बताया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश ई अपॉन एफ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये फार्मूला है, मैंने नंबर से कन्वर्ट करके मैं कर रहा था, दोनों एक ही तरीके हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में भी सेम मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स हैं, 2, और टोटल मेंबर्स 2 कॉइन में 4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में भी 2/4 है, तो दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ से भी 1 आएगा, तो दोनों ही सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम्स, एक डाई को 3 टाइम्स थ्रो किया गया है, 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस एंड 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। 2 टाइम्स डाई का केस है, मीन्स टोटल कितने केसेस होते हैं, 6 × 6 दैट इज 36।
सैंपल स्पेस में कितने केसेस होंगे, 6 स्क्वायर। सो 4 अपीयर ऑन दी थर्ड टॉस। करते हैं क्वेश्चन। केस था ना ये वाला केस, क्या है 3 कॉइन, तो मैंने 2 कॉइन के लिए 36 बताया, तो यहाँ पे 3 कॉइन्स के लिए 6 क्यूब दैट इज 216 हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर सॉल्यूशन से। ओके, फर्स्ट केस है ई इवेंट जो है हमारी। ई इवेंट में बेसिकली हमारे पास क्या है, थर्ड प्लेस पे 4 होना चाहिए, फर्स्ट 2 प्लेसेस पे कुछ भी हो सकता है, तो थर्ड प्लेस पे 4 हो गया। कॉइन डाई को 3 टाइम्स थ्रो करना है, तो यहाँ पे 1 2 4 हो सकते हैं, ऐसे ही 1 3 4 हो सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, मीन्स फर्स्ट 2 प्लेसेस पे कितने नंबर्स होंगे कॉम्बिनेशंस के, 6 इंटू 6 36 नंबर्स होंगे। ऐसे ही लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, ढेर सारे नंबर आएंगे 36, लास्ट में आएगा 6 6 4, कितने नंबर्स होंगे 36, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे भी 6 नंबर्स हो सकते हैं कॉम्बिनेशन 11th क्लास, एंड सेकंड प्लेस पे भी 6 होते हैं, टोटल 36 केसेस होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सैम्पल स्पेस। बस कंडीशन है कि हमारी थर्ड प्लेस पे 4 आना चाहिए। एफ जो हमारा एफ इवेंट है, एफ इवेंट इज हमारा फर्स्ट 2 प्लेसेस फिक्स हैं, 5 और 6 होंगे, तो लास्ट वाला प्लेस कुछ भी हो सकता है, 1 से 6 तक के कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। सो 5 6 1 हो सकता है, 5 6 2 हो सकता है, ऐसे ही डॉट 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 5 6 6 हो सकता है। अब आप सोच के बताओ कि दोनों में कॉमन क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ के बीच में कॉमन क्या है। ई की कंडीशन है कि थर्ड प्लेस पे 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे थर्ड प्लेस पे 4 आएगा कब, और यहाँ पे 5 6 होगा, लास्ट में 4 होगा, तो इसका एक सिंगल सैंपल स्पेस हमारा कॉमन है। दिस इज 5 6 4, दिस इज कॉमन, ये कॉमन है। ओके, एफ में टोटल मेंबर्स हैं 6, ई में टोटल मेंबर है 36। अब हमें फाइंड आउट करना है, ये काफ़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड आउट करना। तो इसको 2 तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वे इज नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने मेंबर्स कॉमन है, 1 डिवाइडेड बाई नंबर इन एफ। तो नंबर इन ई इंटरसेक्शन एफ इज 1 एंड एफ में कितने मेंबर्स है 6, तो 1/6। और प्रोबेबिलिटी के केस से आप फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अलग अलग फाइंड आउट कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट इज अगेन ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड आउट करोगे 1/216, एफ फाइंड आउट करोगे 6/216, तो वहाँ से भी वही कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर 1/6 आएगा। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होने। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एज्यूम दैट ईच born child is equally likely to be a girl or boy। जो भी बच्चा है इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली का मीनिंग क्या है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि चाइल्ड गर्ल्स भी हो सकता है, बॉयज भी हो सकता है, ठीक है। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों गर्ल्स चाइल्ड हों, बहुत अच्छी बात है। द यंगेस्ट इज गर्ल्स, एट लीस्ट 1 इज गर्ल्स। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में हमें कंडीशन किसकी निकालनी है कि बोथ आर गर्ल्स। गिवन क्या है, मीन्स ऑलरेडी अकर्ड क्या हो चुका है, यंगेस्ट इज गर्ल, एट लीस्ट 1 इज गर्ल्स। केसेस बनाते हैं, डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन 4 मार्क्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं लास्ट ईयर्स में। ओके, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट सैंपल स्पेस बनाते हैं। 2 चाइल्ड के लिए क्या सिचुएशंस हो सकती है, हम कैपिटल लेटर यूज करेंगे, स्मॉल लेटर यूज करेंगे। स्मॉल मीन्स यंगेस्ट के लिए, तो लाइक बी बड़ा वाला भाई है, छोटा वाला जो सेकंड है वो भी बॉय ही है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, बड़ा भाई है, छोटी बहन है, बड़ी बहन है और एक भाई हो गया उसके स्मॉल बी, और दोनों ही गर्ल्स हैं, ये सिचुएशन। अब कंडीशन है
कंडीशन ई इवेंट क्या है, जिसकी हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। देखो डेली लाइफ से कितना रिलेट करते हैं ये सारे चांसेस। इवन पॉपुलेशन कंट्रोल जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये सब सारी कैलकुलेशंस होती हैं जिससे हम प्रिडिक्शन करते हैं किस कंट्री की पॉपुलेशन ग्रो ऐसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसे रोक सकते हैं, या फिर आगे क्या होगी। पूरा काफ़ी डीप आप कभी पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा। ई इज़ द इवेंट, तो वहाँ पे काफ़ी यूज़फुल होते हैं प्रोबेबिलिटी के केसेस। ई इज़ द इवेंट दैट बोथ आर गर्ल्स, तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस में हमारे पास सिंगल मेंबर है। अब यहाँ पे दो केसेस और हैं हमारे पास। फर्स्ट है इफ़ यंगेस्ट इज गर्ल्स। यंगेस्ट इज गर्ल्स, क्या कौन कौन से केस हैं जहाँ पे यंगेस्ट गर्ल्स है, इसमें देखना ये वाला केस है और ये वाला केस है। मीन्स एफ इज इन दिस सिचुएशन, एफ इज इक्वल टू बी जी एंड जी जी। ओके, और यहाँ पे ये कहाँ से लिख दिया मैंने, एक्चुअली ये तो कंडीशन है कि बोथ आर गर्ल्स, मीन्स जी जी, छोटी बहन बड़ी बहन। देन probability of E by F, simple cases. Then E intersection F भी फाइंड आउट कर लेते हैं, सिंगल है। E इंटरसेक्शन F क्या होगा, G G, यही तो होगा, सिंपल है। E इंटरसेक्शन F, यहाँ देख लीजिए ये भी, यहाँ ये भी है और ये है, ये कॉमन है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन E if F is already occurred, मीन्स छोटी वाली बहन है, ये हमें मालूम है, यंगेस्ट इज गर्ल चाइल्ड। सो दिस इज सिचुएशन हाउ वी डील विद दिस। E intersection F is 1, so this is E intersection F divided by number in E intersection F, number in F, number F that is 1/2। हो गया, सिंपल केस, इजली आपने फाइंड आउट कर लिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल होता है, बस आपको प्रोबेबिलिटी। सेकंड है, सेकंड केस देखते हैं। एटलीस्ट वन चाइल्ड इज गर्ल्स, तो एटलीस्ट वन में सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाती है, तो एफ के लिए अब सैम्पल स्पेस चेंज हो जाएगा। एक गर्ल्स तो ऐसा भी हो सकती है कि ये छोटा वाली बहन हो, बड़ी बहन छोटा भाई हो, और ऐसा हो सकता है दोनों बहनें, तो अब सिंपल स्पेस यहाँ पे चेंज होता हुआ। तो ये छोटी छोटी सिचुएशंस को आप समझिए। बट यहाँ अभी भी इंटरसेक्शन वही होगा, इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि ई के पास तो सिंगल मेंबर ही है। जी जी, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज, अगेन इंटरसेक्शन में 1 पोर्शन है, एफ में 3 पोर्शन है, दैट इज 1/3। तो ये 1/3 बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ढेर सारे के आंसर नहीं आते। एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो मैंने बताया एकदम कूल माइंडेड, आप खुद अपने सॉल्यूशंस करिए। ये ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू के इस बार भी आए थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0, दैट मीन्स नॉट डिफाइन इज द आंसर, सिंपल वन। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस और हैं, आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल हैं। गिवन दैट द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन थ्रो टू डाइस आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इफ द सम ऑफ नंबर ऑन डाई इज 4। सम ऑफ नंबर 4 होना चाहिए डाई पे, गिवन दैट टू नंबर्स आर डिफरेंट, दोनों नंबर्स डिफरेंट हो रहे हैं, तो सम ऑफ 4 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देखिए। 2 डाइज आर थ्रोन, देन टोटल नंबर इन सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस में कितने मेंबर्स होंगे डाइस के केस में, टोटल मेंबर इन सैम्पल स्पेस, टोटल मेंबर इन सैम्पल स्पेस एस इज गिवन बाय, इनफैक्ट टोटल नंबर 1 1 1 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कितने मेंबर्स होंगे, 6 × 6 दैट इज 36। ये सब डिस्कस हो चुका है, आप जानते हो 36। अब ई क्या है, सम शुड बी इक्वल टू 4, तो 4 नंबर्स कैसे फॉर्म हो सकता है, 1 3 2 2 4 हो सकता है। ओके, और क्या हो सकता है, रिवर्स कर दे 1 3 एंड 3 1, ये सिचुएशन हो सकती है। दीज आर द 3 सिचुएशंस
वी कैन फाइंड द नंबर 4, और तो 4 हो नहीं सकता क्योंकि 0 तो केस होता नहीं, तो 4 नंबर्स ये हो सकते हैं जिनका सम 4 हो। अब f कैसी कंडीशन है, f इज द कंडीशन नंबर्स आर डिफरेंट। f के लिए भी कंडीशन गिवन है कि नंबर्स कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब 6 सिचुएशंस ऐसी होंगी, आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉमन थिंकिंग करनी होगी। 6 सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे नंबर सेम होते हैं, 1 1 2 2 3 3, तो टोटल 30 सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे नंबर्स डिफरेंट होते हैं। तो दैट मीन्स 1 2 1 3 डॉट 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 ऐसे करके हमें 30 सिचुएशंस करनी है। अब इसको हम बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट, इसकी रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे कर दीजिए। ऐसा हमारा सिंपल स्पेस होता है, इसमें से हमें माइनस करना है क्या, 1 1, क्योंकि ये छोटे केसेस हैं, इनको आप इजीली शो कर सकते हैं। 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। बेसिकली यहाँ पे हमें 30 सिचुएशन से ये ध्यान रखना है। अब आउट ऑफ 30 सिचुएशंस दोनों में कॉमन क्या होगा, क्योंकि f के पास सारे मेंबर्स क्या हैं, दोनों प्लेसेस के डिफरेंट हैं। जब कॉमन आप करोगे, इंटरसेक्शन निकालोगे, ई इंटरसेक्शन f, तो बेसिकली ये कॉमन वाला तो नहीं आने वाला, क्योंकि 2 2 तो हमने माइनस कर लिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 3 एक मेंबर और 3 1। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर है, इसको आप 4 काउंट मत करना, ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है इफ f इज ऑलरेडी अकर्ड। f क्या थे हमारे पास, डिफरेंट मेंबर है। ई क्या है, सम इज 4। इंटरसेक्शन में कितने नंबर इन ई इंटरसेक्शन f डिवाइडेड बाई नंबर इन f। नंबर इन f कितने हैं, अभी फाइंड आउट किया 30, एंड इंटरसेक्शन में कितने मेंबर्स हैं, 2, तो आंसर हो गया 1/15। तो गुड क्वेश्चन इट इज, और डिस्कस हमने कर लिया मेन क्वेश्चन। थैंक्स टू ऑल।